ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا تعلق جس گھرانے سے تھا، میرے خواب اس طبقے کے مطابق ہرگز بھی نہ تھے۔ میری خواہشات ہمیشہ سے بہت اونچی رہی تھی اور انہی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نت نئے طریقے اپناتی رہتی تھی۔ میرے آس پاس موجود تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ میں اپنی خواہشات اور اپنے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کی محنت کرنے اور ہر قسم کے مشکل کام کو سر انجام دینے سے بھی نہیں کتراتی ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے کئی ہنر سیکھ رکھے تھے۔ اب ہمارے گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی تو سلائی کے کپڑے میرے پاس آتے تھے، مہندی لگوانی ہوتی تو لڑکیاں میرے گھر کا در کھٹکھٹاتی تھی، کسی کے ہاں دعوت ہوتی تو پکوان میرے گھر سے بن کر جاتے تھے۔ نیز یہ کہ میں کئی طرح کے کام کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ فصل کے موسم میں فصل بھی کاشت کیا کرتی تھی، اور یوں میں کافی زیادہ پیسے جمع کر لیا کرتی اور اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتی۔ لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ یہ تمام کام کرنے کے باوجود میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوتے کہ میں اپنی زندگی کو اس معیار کے مطابق جی سکوں جس معیار کے حساب سے میں اسے جینا چاہتی ہوں۔ اور میں جانتی تھی کہ گاؤں میں رہ کر کبھی بھی میں اپنی تمام خواہشات پوری نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے مجھے شہر جانے کا حد درجہ شوق تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے اس شوق کا کتنے لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے کس کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ہی اپنے خوابوں کی تکمیل مل پائے گی۔ میرا نام افروز ہے اور میرا تعلق ایک پسماندہ علاقے کے گاؤں سے ہے۔ میں وہاں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ البتہ میرے والد کا خاندان کافی بڑا تھا اور ہمارا ان کے تمام رشتہ داروں کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میری والدہ کا خاندان بہت چھوٹا تھا اور میرے صرف ایک ہی ماموں تھے، لیکن ان سے بھی ہماری بہت زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مامی کو ہمارا ان کے گھر آنا یا ماموں کا ہمارے گھر آنا زیادہ پسند نہ تھا، لہٰذا ہمارا زیادہ تر آنا جانا صرف اور صرف ددیال کی طرف ہی ہوتا تھا۔ وہاں مجھے اپنے ایک چاچو سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، کیونکہ وہ ہر مرتبہ میری طرفداری کرتے تھے اور میری ہر بات مانتے تھے، اور میرے ماں باپ کو اس بات کے لیے رضامند کرتے تھے کہ وہ مجھے میری خواہشات کو پورا کرنے دیں۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے چچا جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی اولاد میرے ساتھ اتنا ہی برا سلوک کرے گی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی وجہ سے میرے والدین میری تقریباً ہر بات مان جاتے تھے۔ لیکن جب میں نے انہیں یہ کہا کہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے شہر جانا چاہتی ہوں، تو وہ لوگ یہ بات سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گئے اور انہوں نے میری بات ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اتنا صاف انکار میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا تھا، اور میں اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہی تھی کہ میرے والدین میری بات نہیں مانیں گے۔ لہٰذا ان کا انکار سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں بہت زیادہ حیرت زدہ رہ گئی کہ آخر وہ میری بات سے انکار کیسے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں انتہائی غصے کی کیفیت میں اپنے چچا کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کر چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرے چچا زاد کزن نے جب مجھے خاموشی سے وہاں بیٹھے دیکھا تو وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ میں نے انہیں تمام تر معاملہ بتایا کہ میں کیسے شہر جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے والدین ہیں کہ وہ مجھے شہر آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ شہر جانے کا خواب اپنے دل سے ختم کر دوں، لیکن میں یہ خواب اپنے دل سے کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہتی۔ میرے چچا زاد میری بات انتہائی غور سے سن رہے تھے اور انہوں نے میری بات سننے کے بعد کہا کہ تم ہرگز بھی فکر نہ کرو، میں چچا جان اور چاچی سے بات کروں گا اور تمہیں شہر لے جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ویسے بھی کچھ دنوں میں کام کے سلسلے میں شہر جا رہے ہیں اور میرے والدین کو میرا اکیلے شہر جانا اگر مناسب نہیں لگ رہا تو میرے کزن ان سے بات کریں گے اور اس بات کی اجازت لے لیں گے کہ میں اپنی کزن کے ساتھ شہر چلی جاؤں اور ان کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں۔ میں یہ بات سن کر خوش ہوئی کہ کم از کم اس طریقے سے میں شہر جا کر کچھ دن تو رہ سکوں گی
और देख सकूंगी कि मैं वहाँ पर क्या काम कर सकती हूँ और क्या काम नहीं कर सकती। मैं अपने चचाजाद कज़न की बहुत मशहूर हुई और उनका शुक्रिया अदा करके घर आ गई। मेरे घर वाले मेरे वापस आने पर बहुत हैरान थे, क्योंकि मैं जब भी उनसे नाराज़ होकर चचा के घर जाती तो कम से कम 3-4 दिन तक वहीं रहती थी, और फिर मेरे वालिदैन मुझे मनाने आते थे, तभी मैं उनके साथ वापस घर जाती थी। वैसे भी मेरे चचा के घर में हर कोई मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन इस दफ़ा मैं खुद ही वापस आ गई थी। वो दरअसल ये बात नहीं जानते थे कि मैं वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा मसला खुद ब खुद हल हो गया है, और मेरा चचाजाद कज़न आज ही मेरे वालिदैन से बात करने के लिए आ रहे थे। वो पूरा दिन मैंने हर लम्हा गिन गिन कर गुजारा कि किस वक्त रात होगी और कब मेरे वालिदैन के सामने मेरे कज़न अपना मुद्दा बयान करेंगे। उस दिन मैंने बहुत रग़बत के साथ रात का खाना खाया और फिर मैं अपने कज़न का इंतज़ार करने के लिए दरवाज़े के पास ही घूमती रही। काफ़ी देर गुजरने के बाद हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने फ़ौरन लपक कर दरवाज़ा खोला। सामने ही मेरे चचाजाद कज़न खड़े थे। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराई और उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। मेरे बाबा उस वक्त उन्हें घर देखकर काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि मेरे कज़न रात के इस वक्त कभी भी घर नहीं आया करते थे। लेकिन मेरे कज़न ने बाबा से कहा कि चचा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मेरे बाबा उन्हें लेकर चारपाई पर बैठ गए और कहा कि हाँ बोलो, तुमने मुझसे क्या बात करनी है। मेरे कज़न ने मेरे बाबा से कहा कि मैं आपसे बात अकेले में नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप चच्ची को भी यहीं पर बुला लें, ताकि मैं फिर आप दोनों से एक साथ बात कर सकूँ। ये बात सुनकर मेरे बाबा थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने मेरी अम्मी को भी आवाज़ देकर वहीं बुलवा लिया। फिर वो दोनों ही मेरे कज़न की बात को गौर से सुनने लगे, जो उन्हें बता रहे थे कि वो कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं। दोनों ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुए, लेकिन मेरे बाबा को ये समझ नहीं आया कि आखिर रात के इस पहर मेरे कज़न बाबा को ये बताने क्यों आई हैं कि वो शहर जा रहे हैं। तभी मेरे कज़न ने अगली बात कही और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप कुछ दिनों के लिए अफरोज़ को भी शहर भेज दें। ये बात सुनकर मेरे बाबा की आंखों में हल्का हल्का गुस्सा तैरने लगा। उस गुस्से को देखते ही मेरे चचाजाद ने फ़ौरन दोनों हाथ खड़े कर दिए और कहा, चचा, कुछ भी कहने से पहले मेरी मुकम्मल बात ज़रूर सुन लें और उसके बाद ही कुछ कहें। मेरे बाबा उनकी बात सुनकर खामोश हो गए, और एक तरीके से इशारा यही था कि वो अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं। मेरे चचाजाद कज़न को मेरे वालिद की खामोशी से थोड़ा हौसला हुआ और उन्होंने कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखें, मुझे शहर एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, लेकिन मुझे वहाँ पर कम से कम 1 हफ़्ता लग सकता है, और आप तो जानते ही हैं कि अफरोज़ को भी शहर जाने का कितना शौक़ है। मैं 1 हफ़्ते तक किसी होटल में तो नहीं ठहर सकता, इसलिए मैंने वहाँ पर एक कमरा किराए पर लिया है। अगर मैं 1 हफ़्ता वहाँ रहूँगा तो वहाँ मेरे खाने पीने का बहुत ज़्यादा मसला होगा, और अगर मैं पूरा हफ़्ता बाहर से खाना ख़रीदूँगा तो ये सब मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अफरोज़ मेरे साथ चले, ताकि उसका शौक़ भी पूरा हो जाए और मेरा मसला भी ख़त्म हो जाए। आप जानते हैं कि अफरोज़ मेरे लिए बिल्कुल मेरी बहनों की तरह ही है, इसीलिए आप बेफिक्र होकर उसे मेरे साथ भेज सकते हैं, और यूँ इसका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। मेरे वालिद की आंखों में तैरता गुस्सा अब कुछ हद तक कम हो चुका था। मेरी वालदा भी कुछ हद तक हैरत ज़दा थी, लेकिन उनके चेहरे पर किसी किस्म की नाराज़गी नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि अब वो दोनों ही पुरसोच नज़रों से मुझे और मेरे कज़न को देख रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मेरे वालिदैन अगर गुस्से में नहीं हैं तो वो मेरी कज़न की बात ज़रूर मान जाएंगे। और मुझे अपने कज़न पर भी बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि उन्होंने इतना अच्छा बहाना कैसे बना लिया, वरना मुझे तो लगा था कि वो बस मुझे टाल रहे हैं। लेकिन वो मेरे वालिदैन से इजाज़त लेकर मुझे शहर नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कज़न को मुझे शहर ले जाने की इजाज़त मेरे वालिदैन से मिल ही जाएगी और मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ पसो पेश के बाद मेरे वालिदैन ने मेरे कज़न को इजाज़त दे दी, और यूँ
2 दिन बाद मुझे अपने कज़न के साथ शहर जाना था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और ये 2 दिन मैंने शहर जाने की तैयारी करते हुए ही गुजारे थे। मेरी वालदा भी मेरे शहर जाने से बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें मेरे शहर जाने का सिर्फ एक ही मसला था कि मैं वहाँ अकेले नहीं रह सकूँगी। लेकिन अब चूँकि मैं अपने कज़न के साथ जा रही थी तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो यही चाहती थी कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन हम दोनों ही ये नहीं जानते थे कि मेरा ये पहली मर्तबा शहर जाने का सफ़र तो बहुत अच्छा गुजरेगा, लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोड़ आएंगे कि मैं अपनी इस ख्वाहिश पर पछताया करूँगी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैं और मेरे कज़न मुंह अंधेरे ही शहर की जानिब चले गए। मेरे वालिदैन हम लोगों को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए आए थे और मेरे वालिद साहब बार बार मेरे कज़न को कह रहे थे कि तुम मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना, और मेरे कज़न उन्हें इत्मीनान दिला रहे थे कि आप फिक्र ना करें, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। हम लोग शहर चंद घंटों में पहुँच गए थे। शहर जाकर मेरे कज़न ने मुझे बताया कि उन्होंने कोई कमरा किराए पर नहीं लिया, बल्कि हम होटल में ही रुकेंगे, और मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए परेशानी हरगिज़ भी ना पालूँ, बल्कि हम लोग खाना बाहर से ही खाएंगे, क्योंकि मेरे चचा ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए थे और हम बाहर से खाना लेकर खाना अफोर्ड कर सकते थे। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस बात की परेशानी थी कि अगर मेरे चचाजाद कज़न मुझे घर पर छोड़कर बाहर चले जाया करेंगे तो मैं खाना बनाया करूँगी या फिर अपने ख्वाबों की तकमील के लिए रास्ते ढूंढूंगी। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं शहर में वो तमाम काम कर पाऊंगी और तमाम मुकामात पर भी जा पाऊंगी जहां मैं जाना चाहती थी। मेरे कज़न ने मुझे कहा कि वो मुझे अपने एक दोस्त के साथ बाहर भेज देंगे और उसके साथ पूरा दिन घूमकर मैं वापस होटल पर आ सकती हूँ, और इसी दौरान मेरे कज़न भी अपना काम कर लिया करेंगे। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, और जैसे ही हम पहले दिन होटल पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही हमारा इस्तकबाल करने के लिए मेरे कज़न की एक दोस्त खड़ी हुई थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे कज़न की शहर में कोई लड़की दोस्त कैसे हो सकती है, लेकिन मेरे कज़न ने मुझे बताया कि ये दरअसल उनके एक दोस्त की बहन है जो पहले गांव में ही रहते थे और अब ये लोग शहर आ गए हैं। लेकिन उस लड़की की चाल ढाल देखकर और उसका लिबास देखकर मुझे हरगिज़ भी ये नहीं लग रहा था कि वो लड़की गांव से शहर आई है, बल्कि वो मुझे बहुत मॉडर्न लड़की लग रही थी जो हमेशा से शहर में ही रही थी। बहरहाल मैंने उस लड़की से सलाम दुआ की और वो मुझे बहुत पसंद आई, और उसने मुझे कहा कि तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ ताकि फिर हम लोग बाहर जा सकें। मैं उसकी बात सुनकर खुश हुई और फ़ौरन अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जहाँ जाकर मैंने कपड़े बदल कर मुँह हाथ धोया और मैं उस लड़की के साथ बाहर चली गई। उस लड़की का नाम अनीता था। सबसे पहले वो मुझे शॉपिंग करने ले गई और कहने लगी, तुम्हारे कपड़े जो तुम यहाँ पर लेकर आई थी वो पहनकर तुम यहाँ पर आराम से घूम फिर नहीं सकती हो, बल्कि इस तरह तो तुम सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रहोगी। इसीलिए अगर तुम यहाँ सबके दरमियान रहकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहती हो और घूमना फिरना चाहती हो तो तुम्हें उन्हीं लोगों जैसा भेस अपनाना होगा। उसके बाद वो जो मुझे दिलाती गई वो तमाम चीज़ें मैंने ख़रीद ली, क्योंकि मुझे भी उसकी बात से इत्तेफाक था। उसके बाद वहीं मॉल में ही मैंने अपने कपड़े तब्दील कर लिए। मुझे अनीता के ख़रीदे हुए कपड़े पहनकर थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मुझे शहर में बसना है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है तो मुझे अपने अंदाज को बदलना ही पड़ेगा। और मुझे वैसे भी अपने गांव के लिबास से कोई ख़ास तौर पर मोहब्बत नहीं थी, ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था कि मैं उसे पहनने पर ज़िद करती। अनीता ने मुझे एक बहुत प्यारा गुलाबी रंग का फ़्रॉक दिलाया था और चूड़ीदार पजामा दिलवाया था, जो मैंने मॉल में ही तब्दील कर लिया। दुपट्टा मैंने सर पर लेने की बजाय गले में डाला हुआ था। उसके बाद अनीता मुझे एक पार्लर में ले गई, जहाँ पर उसने हम दोनों के लिए बुकिंग करवाई थी, और वो वहाँ उसने ना सिर्फ मेरे बालों की कटिंग कराई बल्कि उसने मेरा फेशियल करवाया और मुझे एक पूरा नया लुक दे दिया। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी थी, लेकिन मुझे कहीं कहीं डर भी लग रहा था कि जब मैं अपने घर वापस जाऊंगी तो मेरा रूप देखकर सब तरह तरह के सवालात करेंगे
लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उन्हें कोई भी जवाब देकर मुतमईन कर लूँगी। मेरा हुलिया मुकम्मल तब्दील करने के बाद हम लोग उस शहर के कुछ ख़ास मकामात पर गए, जहाँ पर अनीता ने मुझे बताया कि मुझे काम मिल सकता है। उसने मुझे कहा कि क्या तुम्हें एक्टिंग का शौक़ है? ये सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। हाँ, अलबत्ता मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक़ था और हमारे गांव में एक ही चचा के घर टीवी था और हम सब वहाँ जमा होकर फिल्में देखा करते थे। और मुझे हमेशा से इस बात का बहुत शौक़ था कि मैं भी टीवी में आऊँ, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता था कि टीवी में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमीर होना पड़ता है। इसी बात का इजहार मैंने अनीता के सामने किया था। उसने ये सुनकर कहकहा लगाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें टीवी में आने के लिए अमीर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम एक्टिंग करना चाहती हो तो मैं तुम्हें ऑडिशन देने ले जाती हूँ। मैंने उससे कहा, मैं ज़रूर एक्टिंग करना चाहती हूँ। और फिर वो मुझे एक जगह ले गई जहाँ पर मैंने ऑडिशन दिया। मेरा पहला ऑडिशन इतना अच्छा तो नहीं था, क्योंकि मुझ में ना सिर्फ खुद एतमादी की कमी थी, बल्कि मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ ख़ास मालूमात भी नहीं थी। फिर अनीता मुझे वहाँ से दोबारा होटल ले आई और उसने मुझे एक्टिंग के मुतल्लिक काफ़ी सारी मालूमात दी। अगला एक हफ़्ता हम लोग शहर में रहे और रोज़ अनीता मुझे मुख्तलिफ़ जगह ऑडिशन देने ले जाती। उसने मुझे कहा था कि फ़िलहाल तुम ये ऑडिशन सिर्फ अभी इसलिए दो ताकि तुम्हारा एतमाद तुम पर बढ़ता रहे, और फिर मैं तुम्हें एक ख़ास प्रोड्यूसर के पास ले जाऊंगी जहां पर तुम ऑडिशन दोगी और फ़ौरन ही तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। मैं अनीता की ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और अपने हर ऑडिशन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आगे चलकर मेरे साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। अगर मैं उस वक्त जान जाती तो मैं फ़ौरन ही अनीता को मना कर देती और मैं कभी भी किसी भी ऑडिशन में जाने की गलती ही ना करती। आखिरकार शहर में एक हफ़्ता गुजारने और अपनी मन मर्जी करने के बाद मैं और मेरे कज़न गांव वापस आ गए। गांव वापस आते ही जैसे ही मेरे वालिदैन ने मुझे देखा तो वो हैरान रह गए। हालांकि मैंने अपने गांव का लिबास ही पहना हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे की चमक और बालों की कटिंग ने उन्हें चौंका दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सब क्या है, तो मैंने बताया कि वहाँ पर मेरे कज़न की दोस्त की वालदा मुझे मिलने आई थी और उन्होंने ही ये सब कुछ किया था। मैंने सच बताने की हिमाकत हरगिज़ भी ना की, क्योंकि मैं जानती थी अगर अभी उन्हें सच बता दिया तो ये मेरा शहर का पहला और आखिरी सफ़र होगा। मेरे वालिदैन ने मेरी बात का यकीन किया या नहीं किया, लेकिन वो खामोश ज़रूर हो गए थे। लेकिन मेरा शहर दोबारा जाने का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। मैं जब से शहर से वापस आई थी हर वक्त शहर की बातें करती रहती थी। मेरे वालिदैन कभी खामोशी से मेरी बातें सुनते, कभी खुशी से बातें सुनते। मेरे गांव में बहुत ज़्यादा दोस्त ना थे, लेकिन जो भी मुझसे बात करता मैं उसे शहर के किस्से सुनाने बैठ जाती। अभी हमें शहर से गांव आए चंद रोज़ ही गुजरे थे कि मैं दोबारा अपने कज़न के पास गई और उन्हें मैंने कहा कि मुझे दोबारा शहर जाना है और अनीता से मिलना है। मेरे कज़न मुझे देखकर मुस्कुराए और उन्होंने मुझे कहा कि अनीता भी तुमसे मिलने के लिए बेताब है, लेकिन मैं इतनी जल्दी दोबारा तुम्हें शहर नहीं लेकर जा सकता, तो तुम्हें चंद हफ्तों के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इस दौरान अनीता शहर से गांव आएगी और मुझसे मिलेगी। लेकिन मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि आखिर अनीता कैसे गांव आएगी। अगर वो गांव आएगी तो वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाएगी। लेकिन मैंने अपने चज्जाज़ाद के सामने अपने ख़यालात का इजहार नहीं किया और ख़ामोशी से पलट आई। चंद रोज़ मज़ीद गुजरने के बाद एक रोज़ मेरे कज़न मेरे घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि अनीता शहर से गांव आने वाली है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी भी हुई और बहुत तजस्सुस भी हुआ था कि वो गांव के हुलिये में कैसे आएगी। 2-3 दिन गुजरने के बाद एक रोज़ मेरे घर का दरवाज़ा बजा। दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनकर मेरी वालदा ने मुझे कहा कि जाकर दरवाज़ा खोलो। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे सामने अनीता खड़ी हुई थी और उसने मुकम्मल गांव की एक लड़की का लिबास पहना हुआ था।
मैं उसे वहाँ खड़ा देखकर बहुत हैरान रह गई और मुझे शहर में उसका हुलिया याद आया तो मैं उसे देखती खड़ी रह गई। मुझे तो और कुछ समझ ना आया, लेकिन उसने ही फौरन आगे बढ़कर मुझे गले लगाया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने उससे कहा, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, तुम घर के अंदर आ जाओ। तो वो घर के अंदर ना आई और उसने मुझे कहा, क्या कर रही हो तुम? अगर मुझे घर के अंदर बुला लोगी तो अपनी अम्मी से क्या कहोगी कि मैं कौन हूँ? मैंने उसे कहा कि तुम इस बात की फिक्र ना करो, मैं अम्मी से कह दूंगी कि तुम मेरी दोस्त हो। तो वो मान गई और घर के अंदर आ गई। मैंने अम्मी से उसका तारुफ करवाया और फिर हम दोनों मेरे कमरे में चले गए। वहाँ जाकर मैंने उससे दरियाफ्त किया कि आखिर तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो उसने बताया कि मैंने शहर में तुम्हारे कपड़े क्यों बदलवाए थे, ताकि तुम वहाँ पर सबकी तवज्जो का मरकज़ ना बनो, बल्कि आराम सुकून से फिर सको। और अगर मैं गांव में शहर का लिबास पहन कर आती तो मैं यहाँ सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाती और तुमसे मिल भी ना सकती। इसी वजह से मैंने गांव की एक लड़की का हुलिया अपनाया हुआ है, ताकि मैं आराम से तुमसे मिलने आ सकूं और कोई मुझ पर या तुम पर शक ना करे। ये सुनकर मैं उसकी अक्लमंदी की दाद देने लगी कि वाकई वो बहुत सही सोच रही है और उसने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो कुछ देर मेरे साथ बैठी और फिर उसने कहा कि अब वो जा रही है। मैंने उससे पूछा कि वो रात कहाँ गुजार रही है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया और चली गई। और फिर मेरे कज़न ने मुझे बताया कि वो चंद दिन गांव में रहकर वापस शहर जा चुकी है। मेरे कज़न ने 2 हफ्ते बाद दोबारा शहर जाने का प्रोग्राम बनाया और मेरे घर आए। घर आकर उसने कहा कि वो मेरे वालिदैन से इजाज़त लेने आए हैं। इस मर्तबा मेरे वालिदैन ने उन्हें बासानी इजाज़त दे दी और मैं शहर चली गई। वहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर एक दिन में ही ऑडिशन देती रही और फिर जैसे ये मामूल बन गया। मेरे कज़न महीने में 2 मरतबा शहर जाते और मुझे भी साथ ले जाते। मेरे वालिदैन को भी मेरे कज़न पर यकीन हो गया था, लेकिन अभी तक अनीता ने मुझे किसी ऐसे प्रोड्यूसर से नहीं मिलवाया था जो मुझे कास्ट करता, बल्कि अभी तक अनीता मुझे यही कहती रहती कि वो मुझे सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऑडिशन देने ले जा रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे रोल नहीं मिलेगा। मैं पहल तो शौक़ से उसके साथ जाया करती थी, लेकिन अब मुझे बहुत जल्दी थी कि जल्द ही मुझे किसी न किसी प्रोजेक्ट में रोल मिल जाए ताकि मुझे कुछ पैसे मिल सकें। मुझे इस बात की जल्दी थी, इसीलिए मैंने अपने कज़न को कहा कि वो अनीता से कहे कि मुझे किसी ऐसी जगह ले जाए जहाँ पर मुझे रोल मिल जाए, वरना अब मैं कास्टिंग के लिए नहीं जाऊँगी। मेरे कज़न ने मेरी बात सुनी तो उसने कहा कि आज तो हम शहर से वापस गांव जा रहे हैं, लेकिन हम अगली मर्तबा जब आएंगे तो वो ख़ुद मुझे प्रोड्यूसर के पास लेकर जाएगा और मुझे रोल दिलवा देगा। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसके साथ गांव वापस आ गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अगली मर्तबा मेरा शहर जाने का सफ़र किस कदर मुश्किल होगा और वहाँ पर मुझे क्या क्या परेशानी का सामना करना होगा। हुआ कुछ यूँ कि मैं जो अपने चचाजाद कज़न के साथ शहर जाने वाली थी, इस मर्तबा मेरे चचाजाद कज़न ने मुझसे माजरत कर ली और कहा कि फ़िलहाल मैं तुम्हें शहर नहीं लेकर जा सकता क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन मैं तुम्हें अगली मर्तबा ज़रूर शहर ले जाऊंगा। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ और मुझे लगा कि जैसे वो मुझे टाल रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लिहाजा मैंने उनकी बात मान ली और इस बात पर राज़ी हो गई कि मैं उनके साथ अगली मर्तबा शहर जाऊंगी। उनके शहर जाने के दूसरे दिन मेरे एक सौतेले चचा मेरे घर आए और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पता चल गया है कि तुम जो शहर जाती हो तो वहाँ पर क्या करती हो। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई कि अब वो ये सारी बातें मेरे वालिदैन को बता देंगे, लेकिन उन्होंने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे वालिदैन को कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर कामयाब हो सकती हो और तुम्हारा कज़न तुम्हें इसी वजह से शहर नहीं लेकर गया क्योंकि वो इस बात से बहुत ज़्यादा जलता है कि अगर तुम कामयाब होकर अमीर हो गई तो फिर तुम लोगों का बहुत नाम हो जाएगा और वो लोग यहीं इस गांव में रह जाएंगे। मुझे ये सुनकर अपने चचाजाद कज़न पर बहुत अफसोस हुआ कि आखिर वो मुझे कामयाब होने से क्यों रोक रहे हैं। मेरे सौतेले चचा ने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो,
क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारा कज़न कौन से प्रोड्यूसर से मिलाने वाला था। मैं तुम्हें उस प्रोड्यूसर के पास ले जाऊंगा और तुम मेरे साथ शहर चलो। ये कहकर वो मेरे वालिदैन के पास चले गए और उन्होंने ना जाने मेरे वालिदैन से क्या कहकर मुझे शहर ले जाने की इजाज़त ले ली और वो मुझे अपने साथ शहर ले गए। मैं पहली मर्तबा शहर नहीं जा रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मैं अपने चचा के साथ शहर जाने में बहुत खौफजदा हो रही थी। शायद ये मेरी अच्छी किस्मत थी या बुरी किस्मत कि हम जैसे ही शहर पहुंचे और एक होटल में रुके तो मेरे चचा ने मुझे कहा कि तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें प्रोड्यूसर के पास ले जाऊंगा। और ख़ुद भी वो एक दूसरे कमरे में चले गए। मैं मामूल के मुताबिक फ़्रेश होकर चचा के कमरे तक गई और उनके दरवाजे पर दस्तक करने ही वाली थी कि मैंने उनके कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी। मुझे वो आवाज़ें अजीब सी महसूस हुईं तो मैं रुककर उनकी बातें सुनने लगी और उनकी बातें सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मैं ये सोचने लगी कि अगर मैं उनकी बातें ना सुनती और ये अपना प्लान में कामयाब हो जाते तो मेरा क्या बनता। दरअसल ये कि मैंने जैसे ही उनके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने सुना वो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ, मैं लड़की ले आया हूँ, तुम अपना नोटों से भरा बैग तैयार रखना और मैं अभी उसे तुम्हारे पास ही लेकर आ रहा हूँ, फिर तुम मुझे मेरा बैग दे देना और लड़की ले लेना। ये सुनकर तो मेरे होश ही ख़त्म हो गए, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मैं ही उनके साथ मौजूद थी और वो मुझे किसी प्रोड्यूसर से मिलाने नहीं ले जा रहे थे। मुझे यह हरगिज़ यकीन नहीं आया कि मेरे अपने चचा मेरे साथ ऐसा खेल खेल सकते हैं। बेशक वो सौतेले चचा थे, लेकिन मैंने कभी भी सौतेले सगे में कोई फ़र्क नहीं किया था और मेरे लिए तो वो मेरे अब्बू के भाई थे। लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकती कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अलबत्ता मैंने सोचा कि अभी मैं यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास तो पैसे भी नहीं। लिहाजा मैं उनके साथ चली जाती हूँ और वहीं पर थोड़े से पैसे लेकर वहाँ से भाग जाऊँगी। मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अपनी इज़्ज़त को किसी भी तरीके से बचाना ही है और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी। लिहाजा मैं फ़ौरन अपने कमरे में आ गई और अपने ज़रूरी सामान को अपने साथ ही ले लिया। फिर मैं वहीं बैठकर चचा का इंतज़ार करने लगी। जब चचा मेरे कमरे में आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने अपने साथ इतनी सारी चीज़ें क्यों ले ली हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि जब हम वहाँ पर एक्टिंग करने जाएंगे तो हो सकता है कि मुझे अपने कपड़े बदलने पड़े, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। ये सुनकर मेरे चचा मुस्कुराए। वो बोले चलो ठीक है। फिर वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गए और कहा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं चुपचाप वहाँ एक कुर्सी पर बैठ गई और फिर थोड़ी देर बाद एक और आदमी वहाँ आकर बैठा जिसके पास एक बैग भी था और उसने मेरे चचा का नाम लेकर मुझे कहा कि क्या तुम उनके साथ आई हो। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं उन्हीं के साथ आई हूँ और वो रेस्टोरेंट के बाहर आपको ढूंढने गए हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था कि मैं देख सकूं कि उनके लाए हुए बैग में क्या है। जैसे ही वो आदमी मेरे चचा के पीछे रेस्टोरेंट से बाहर गए, मैंने फ़ौरन से देखा कि उनके बैग में क्या है और उनके बैग में इतने सारे पैसे देखकर मैं हैरान ही रह गई। फिर मैंने वो पैसों से भरा बैग उठा लिया और उस बैग में से पैसे निकाल कर अपने साथ लाए हुए बैग में भरने लगी। साथ ही साथ मैंने रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ नज़र रखी हुई थी ताकि जैसे ही चचा या वो आदमी मुझे अंदर आए तो मुझे नज़र आ जाए। लेकिन उनके आने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाना चाहती थी और जैसे ही मैंने बहुत सारे पैसे अपने बैग में रख लिए तो मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। मुझे गेट से बाहर निकलते ही चचा और उनके साथ एक आदमी नज़र आया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैं उनकी नज़रों में नहीं आई थी। मैं फ़ौरन ही छुप गई और जैसे ही थोड़ी देर बाद दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए तो मैं फ़ौरन से बाहर की जानिब बढ़ गई और बाहर जाकर एक महफूज जगह पर बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने देखा मेरे चचा और वो आदमी रेस्टोरेंट से परेशान सी सूरत लिए बाहर आए। मैं जान गई कि ये दोनों मुझे ढूंढने ही बाहर आए हैं। मैं मज़ीद सिमट कर अपनी जगह पर बैठ गई। काफ़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद
मेरे चचा और वो आदमी एक गाड़ी में बैठकर दूसरी तरफ निकल गए तो मैं भी वहाँ से उठी और मुखालिफ सिमत में भागने लगी। भागते भागते मैं काफ़ी दूर निकल आई और अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगा था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैं किसी भी रिक्शे या टैक्सी में बैठने के मुतल्लिक भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मुझे किस पर यकीन करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं कि इतने में मुझे अपने कानों से आज़ान की आवाज़ें सुनाई दी और मुझे समझ आ गया कि आसपास कोई मस्जिद है। मस्जिद का ख्याल आते ही मुझ में उम्मीद पैदा हो गई और मैं फ़ौरन से मस्जिद की तलाश में अपनी नज़र दौड़ाने लगी। फिर आखिरकार काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे उस इलाके की मस्जिद मिल गई और मैं उस मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गई। अब मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो चुका था और मुझे बहुत डर लग रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत की और मस्जिद के अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर गई तो मैंने देखा कि वहाँ तो नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। मैं एक कोने में खड़े होकर उनकी नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगी और फिर जैसे ही तमाम नमाजी मस्जिद से चले गए तो मैं फ़ौरन इमाम मस्जिद के पास गई और उनके सामने जाकर अपना तारुफ करवाने लगी। जब उन्होंने मुझे रोते देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने उन्हें अपने साथ हुए तमाम वाक़यात बता दिए और वो सारी बातें उन्हें बताते हुए मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्होंने मुझे इतना रोते हुए देखा, मुझे दिलासा दिया और कहा कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, बल्कि तुम मेरे साथ चलो। तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। मेरे घर पर चलकर तुम आज रात रह सकती हो, फिर सुबह तुम्हारे घर वालों से राब्ता करके तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई कि मैं अपने वालिदैन को क्या बताऊंगी कि मैं चचा के साथ किसी प्रोड्यूसर से मिलने क्यों गई थी। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मौलवी साहब के घर चली गई। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बीवी और बेटी किसी दावत में गई हुई हैं और वो रात तक वापस आ जाएंगी। वो मुझे घर में कमरा दिखाकर आराम करने का कहकर दोबारा मस्जिद चले गए। उन्होंने जाने से पहले मुझे दूध के साथ दवा भी दी थी। जब मैंने उनके जाने के बाद इस बात की तसल्ली कर ली कि घर में कोई मौजूद नहीं है, तो मैं कमरे में मौजूद बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूँगी। तभी जाने क्या सोचते सोचते मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। मेरी नींद में खलल उस वक्त पैदा हुआ था जब मुझे कमरे के बाहर से अजीब किस्म के कहकहों की आवाज़ आने लगी। मैं अपने बिस्तर से फ़ौरन खड़ी हो गई और बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे के बाहर गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वहाँ पर सहन में अनीता और मेरे चचा ज़ाद कज़न मौजूद थे। मैं उन्हें देखकर इतनी हैरान हुई, मुझे कुछ समझ ना आया और उन्हें देखते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गई। वो दोनों भी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और मेरे चचा ज़ाद ने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एक तरफ उन दोनों को देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, तो दूसरी तरफ मैं खुश भी हुई थी कि आखिरकार कोई तो मुझे अपना उस शहर में मिल गया था। उन दोनों को मैंने अपनी जानिब देखते देखा और मेरे चचा ज़ाद कज़न ने मुझसे दोबारा पूछा तो मैंने उन्हें तमाम बात बता दी, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा तुम्हें मुझ पर एतबार करना चाहिए था और हमारे सौतेले चचा की बातों में आकर उनके साथ शहर नहीं आना चाहिए था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं और अनीता एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं इस मर्तबा अपने साथ तुम्हें इसीलिए नहीं लेकर आया क्योंकि इस मर्तबा मैं अनीता के वालिदैन से मिलना चाहता था और उनसे अपने रिश्ते की बात करना चाहता था। उन्होंने मुझे बताया तो ये सुनकर बहुत हैरान होकर मैंने अनीता से पूछा कि तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं और तुम इस घर में क्या कर रही हो। तो उसने बोला कि मैं साथ वाले घर में रहती हूँ और ये मेरे खालू का घर है। अभी मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हारा कज़न मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आया था और फिर वहाँ से निकलकर घर जाने की बजाय थोड़ी देर मुझसे मिलने यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम अंदर क्या कर रही हो? मैं तो नहीं जानती थी कि खालू के घर में कोई लड़की भी मौजूद है। तो मैंने उसे बताया कि मुझे दरअसल इमाम मस्जिद ने अपने घर पर आराम करने के लिए कहा था
और कहा था कि उनकी बीवी और बेटी रात की दावत के बाद वापस आएंगे। तो उसने मुझे कहा कि वो दोनों भी मेरे ही घर पर हैं, अभी यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद अनीता ने मुझे कहा कि मैं किसी को ना बताऊं कि मेरे कज़न उससे मिलने के लिए इस घर में आए थे। मैंने उनकी बात मान ली कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैंने उन दोनों को यहाँ पर साथ देखा है। कुछ ही देर गुजरी कि मेरे चचा ज़ाद कज़न तो चले गए और अनीता के घर वाले यहाँ पर आ गए। सब मुझे देखकर हैरान हुए तो मौलवी साहब ने सबसे मेरा तारुफ करवाया और कहा कि मैं रास्ता भटक गई हूँ और कल मुझे अपने घर वापस जाना है। तो अनीता ने उन लोगों को बताया कि वो मुझे जानती है और मेरे ही कज़न से अनीता का रिश्ता तय होने वाला है। ये सुनकर सब बहुत हैरान हुए और अनीता के बाबा फ़ौरन जाकर मेरे कज़न को दोबारा बुला लाए, जो थोड़ी देर पहले ही घर से गया था। मेरे कज़न ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि वो मुझे जानता है और मुझे अपने साथ कल वापस ले जाएगा। ये सुनकर सब ने शुक्र अदा किया कि आखिरकार मुझे मेरे घर वाले मिल गए थे और सब ने उस रात मेरा बहुत ख्याल रखा। अनीता और इमाम मस्जिद की बेटी उस रात मेरे साथ ही रही और अगली सुबह मैं अपने चचा ज़ाद कज़न के साथ गांव वापस आ गई। मेरे गांव वापस आने के बाद मुझे पता चला कि अभी तक मेरे चचा गांव वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने मेरे वालिदैन से कोई राब्ता किया है। मेरे कज़न ने मेरे वालिदैन को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि चचा को कुछ काम था, इसीलिए उन्होंने मुझे मेरे कज़न के साथ वापस गांव भिजवा दिया है। फिर मेरे चचा बहुत दिन बाद वापस आए तो वो मुझे गांव में देखकर हैरान रह गए और मैंने उन्हें कह दिया कि उन्होंने किसी को मेरे मुतल्लिक कुछ बताने की कोशिश की तो मैं उनका राज सबके सामने फाश कर दूंगी, जिसके बाद वो मुझसे दूर रहने लगे। कुछ अरसे बाद ही मेरे चचा ज़ाद कज़न की अनीता से शादी हो गई। फिर आखिर मेरे कज़न और अनीता मुझे शहर ले गए और उन्होंने मुझे एक प्रोड्यूसर से मिलवाया तो उसने मुझे अपने एक प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा रोल ऑफ़र किया। लेकिन मैं बहुत डर गई थी कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे कज़न और अनीता ने ही मेरे घर वालों को मनाया और यूं हम शहर शिफ्ट हो गए, जहां पर मैं खूब काम करने लगी और मैंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली। मैंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा शुरू कर दी थी क्योंकि अब मैं पढ़ना अफोर्ड कर सकती थी और साथ साथ मैंने अपना काम भी जारी रखा और आखिरकार वो तमाम ख्वाहिशात पूरी कर ली जो मैं हमेशा से पूरी करना चाहती थी। मैंने अपने चचा ज़ाद कज़न और अनीता को भी महंगे महंगे तोहफ़े दिए जो मैं उनकी शादी पर उन्हें नहीं दे सकी थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे सौतेले चचा जिन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की थी वो भी कभी कभार शहर आते हैं और मेरे वालिद से बहुत घुलने मिलने की कोशिश करते ताकि हमारी तरक्की में उनका भी फ़ायदा हो सके। लेकिन मैंने उन्हें साफ अंदाज में बता दिया था कि अगर उन्होंने मेरे घर वालों से राब्ता बढ़ाने की कोशिश की तो मैं उनकी सच्चाई सबको बता दूंगी। ये सुनकर वो हमारी फैमिली से एक मर्तबा फिर दूर हो गए और अकेले रहने लगे और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी कि उसने मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मुझे मेहनत करने की तौफीक दी और मुझे नुकसान पहुंचने से बचा लिया। अब मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी तालीम भी मुकम्मल होने वाली है और मैं अब जो चाहती हूँ वो ख्वाहिश अपनी पूरी कर लेती हूँ।